We are reading Srimad Bhagavatam, first canto, 6th chapter and 11th verse. So before this, हम लोग quickly recap कर लेते हैं. तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हमने देखा था कि व्यासदेव पूछ रहे हैं नारद मुनि से, है ना, उनकी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है. और क्या पूछ रहे हैं कि आप जो भक्ति वेदांत जो थे, जिनको आपने सेवा करी थी, वो चले गए, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो पूछते हैं आपकी इनिशिएशन हो गया था, उसके बाद आपने क्या करा, है ना. आपको ये जो बॉडी है, जो नारद मुनि की जो बॉडी आपको कैसे मिली? व्यासदेव जी पूछ रहे हैं सारी चीजें, है ना. और आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता है ना. ये 3-4 चीजें पूछ रहे हैं वो, ठीक है. फिर ये तो 1 से लेके 4 तक वर्स है ना. 5 से लेके जो 10 तक जो आप लोगों ने 10th कर लिया था लास्ट वीक. सो 5 से लेके 10th में उनकी मदर का डिपार्चर बताया गया, ठीक है. 5 to 7 में बताया कि माँ उनसे कितना प्यार करती थी, है ना, और बच्चे को ढंग से खिला नहीं पाती थी, है ना, वेरी वो मेड सर्वेंट थी, है ना. और फिर वो बता रहे थे, नारद मुनि बताते थे कि मैं पूरी तरीके से मेरी माँ पे डिपेंडेंट था क्योंकि मैं छोटा था, है ना. फिर बताया कि मेरी माँ को, यू नो, एक सांप ने काट लिया, है ना. और सांप ने काट लिया हो तो ठीक है, लेकिन उसको नारद मुनि ने कैसा लिया? he took it as considered as a special mercy of the Lord. ये सोच के he left home, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे 11th वाला. 11th से लेके 13 तक ना, नारद मुनि इज ट्रेवलिंग, है ना, काफी सारी जगह पर, है ना. डार्क जंगल में जाएंगे, वहां सांप होंगे, उल्लू होंगे, जैकल्स, ये सब, ठीक है. फिर 14 और 15 में वो बताएंगे कि कैसे he was very fatigued, you know, how he had drank water from the bath bed, you know, from the river, और नहाया उन्होंने, and then he meditated on Supreme Lord, है ना. तो ये आएगा नेक्स्ट 5 श्लोकों में, ठीक है. और फिर 16 श्लोकों में, 16 श्लोक में उनको भगवान के दर्शन होंगे ना, परमात्मा के, है ना. सो दिस इज हाउ इट्स गोना रोल. सो लेट्स लुक एट नंबर 11. सो मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना है तो वन ऑफ यू कैन रीड इफ यू वांट, है ना. फर्स्ट आई विल रीड. स्फीतान जनापदांस्तत्र पुरा ग्रामाव्रजाकरान् खेटखर्वटा वातिश्च वनानि उपवनानि च स्फीताञ्जनपादांस्तत्र पुरा ग्रामाव्रजाकरान् खेटखर्वटा वातिश्च वनानि उपवनानि च. कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक को? Yes, please, Prabhu. स्फीता जनपदास्त्रत पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च. Beautiful. Anyone else wants to read? Yes, Prabhu, I can read. Please, Mataji. Visvitan janapadan tatra pura grama vrajakran Heta karvata vati cha vanani upavanani cha. Beautiful. Okay. So, who wants to read translation? Can I read, Prabhuji? Please. After my departure, I passed through many flourishing metropolis, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. Listen to this, है ना. Translation पढ़ा हम लोगों ने. We understand the translation. Let's look at how Prabhupada looks at this. Like हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इन 2 लाइंस को पढ़ के श्रील प्रभुपाद ये purport लिखेंगे. Just read it. Shall I continue, Prabhuji? Yes, please, purport. Man's activities in agriculture, mining, farming, industries, gardening, etc. were all on the same scale as they are now, even previous to the present creation, and the same activities will remain as they are even in the next creation. After many hundreds of millions of years, one creation is started by the law of nature, and the history of the universe repeats itself, practically in the same way. The mundane wranglers
wranglers waste time with archaeological excavation without searching into the vital necessities of life. After getting an impetus in spiritual life, Sri Narad Muni even thought, even though a mere child, did not waste time for a single moment with economic development. Although he passed towns and villages and mines and industries, he continually went on to the progressive spiritual emancipation. Srimad Bhagavatam is the repetition of history which happened some hundreds of millions of years ago. As it is said herein, only the most important factor of history are picked up to be recorded in the transcendental literature, in this transcendental literature. Beautiful. Thank you. How beautifully Srila Prabhupada, agar hum log isko padhte, we will not even think of any purport. We will go to the next one straight away. We would have no idea ki kahan se Srila Prabhupada. But look what he's saying, jo hum log abhi dekh rahe hain na, abhi kya hai? Metropolis hai, theek hai, towns hain, villages hain, एनिमल फार्म्स हैं, अभी तो बुचर है ना, बुचर वो क्या बोलते हैं उसको, एनिमल फार्म्स वो हैं जहाँ पर मीट बनता है ना, मीट के लिए वो करा जाता है, माइंस, एग्रीकल्चरल लैंड्स, वैलीज, फ्लावर गार्डन्स, नर्सरी गार्डन्स, नेचुरल फॉरेस्ट है ना, ये सब जगह. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कोई अभी की बात नहीं है. हमें क्या लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव यू नो progressed in their life and they have created all of these things. No, look, millions of years ago he is going through the same thing, है ना. हमारे पास skyscraper building अभी हैं, पहले उस समय नारद मुनि के समय they were flying castles, you know. अभी तो skyscraper building है वो जमीन पे खड़ी होती है, वहाँ पहले people could make, you know, yogis could make castles in the sky, है ना, it's floating in the sky. They will make a floating city, है ना, ऐसे भी है. तो they used to fly on planes, जो मन की गति से चलते हैं ना. तो हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं उनके आगे, है ना. और एक और चीज इसमें ना बहुत अच्छी शिला प्रभुपाद ने बोली है, which is very very interesting, that the mundane wranglers, you know what wranglers means? Anybody knows what is the meaning of wranglers? Wrangler is a person in charge of horses or other livestock, है ना. जो लोग वहां होते हैं ना, खेतों को देखते हैं, घोड़ों को देखते हैं ना, उनको कहते हैं wranglers. The mundane wranglers waste time with archaeological excavation. तो उन्होंने बोला ये जो archaeologist है ना, इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इनको क्या बता दिया उन्होंने? wranglers. They are, you know, घोड़े गधे घोड़े को वो करने वाले, टेक केयर करने वाले. क्यों बताया? Because without searching into the vital necessities of life. कोई बता सकता है what are the vital necessities of life? क्या है vital necessity life की? Food, shelter. Beautiful, beautiful. One word, shelter. There is a verse, श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने second chapter में जो पढ़ा था, वो था अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनस्थिता धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम. तो उसमें बताते हैं अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठा, है ना. पुंभीर मतलब होता है जो इंसान, मतलब पूरे इंसानों में जो सबसे ऊपर है वो है ट्वाइस बोर्न, ठीक है. ट्वाइस बोर्न मतलब द्विज का मतलब होता है सेकंड बर्थ का मतलब होता है ब्राह्मण इनिशिएशन, है ना. सो ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बोर्न, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste division and orders of life is what? The क्या बोल रहे हैं? जितने भी लोग हैं उनकी the highest perfection क्या है? यहाँ पर हम लोगों को क्या लगता है highest perfection क्या है? हम लोग we become, you know, we have the best job, best house, best car, है ना, बच्चे भी बेस्ट, यू नो, बेस्ट लोकेलिटी, है ना. बट इसमें क्या है? तभी शिला प्रभुपाद इनको बोल रहे हैं कि दे आर wranglers, mundane wranglers who are searching into the vital necessities of life. Actually the इसमें क्या बता रहे हैं कि the most highest perfection one can achieve is to please the personality of Godhead. Samsiddhir हरि तोषणम. हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, तोषणम का मतलब होता है उनको प्लीज करना,
तोषण, तोषण है ना, पोषण का मतलब होता है नरिश करना, और तोषण का मतलब होता है प्लीज, है ना, प्लीजिंग. सो सम सिद्धिम हरितोषणम. सो नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या है? टू लव गॉड, है ना. शेल्टर, हाउ डू वी लव गॉड? द ओनली वे इज टू टेक शेल्टर, है ना. और शिला प्रभुपाद यही एक चीज यहाँ पर बताने वाले हैं कि ऑल दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, इसमें भी ये बता रहे हैं ना कि जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से आता है, ये जो हम लोग वर्णाश्रम आता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. ये सारी चीजें क्या है? इट इज एक्चुअली नथिंग, इट इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू कृष्णा. एक और वर्स है, आई एम नॉट टू श्योर इसमें है कि नहीं है. अरे I was such a beautiful verse. Such a beautiful verse. I really wanted to. मेरे को लगा मैंने ना मेरे पास एक चीज है जिसमें ना मेरे को लगा इसमें होगा वो. एक सेकंड रुको ना, इसके पीछे मेरी श्लोक वाली बुक पता नहीं कहाँ रख दी मैंने. एनीवे, तो वो कहता है उसमें लास्ट वर्स ही है, श्रम है एवे ही केवलम, है ना. न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम. न उत्पादयते, उत्पादन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग, है ना. न उत्पादयते, नहीं न उत्पादयते यदि रतिम. रति का क्या मतलब होता है? रति का मतलब होता है प्रेम, एट्रैक्शन. न उत्पादयते यदि रतिम श्रमः एव ही केवलम. इट इज अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. अगर हम लोगों ने भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं करा हम लोगों ने, तो हमारे जितने एंडेवर्स हैं लाइफ के, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. दिस इज द एसेंस. श्रीमद् भागवतम का भी यही एसेंस है ना. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में ना यही चलेगा. ठीक है. चित्र धातु विचित्राद्रिन इदा भग्ना भुंज द्रुमान जलाशयान चिव जलान नलिनी सुरास सेवितः चित्रा स्वनः पत्र रथेर विभ्रमाद ब्रह्म श्रिया. कोई पढ़ेगा इसको? and we'll go to the next one. मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी. Please प्रभु. I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land with reservoir of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heavens, decorated with bewildered bees and singing birds. Thank you, Prabhu. Nala Venu Sharastamba Kusha Kichaka Gahavaran Eka Eva Tiato Ham Adraksham Vipinam Mahat Koram Ghoram Pratibha Yakaram Vyalo Luka Shivajiram. पढ़ोगे प्रभु? ये मित्र प्रभु. प्रभु हरे कृष्ण. प्रभु Krishna want to read. Krishna want to read. Please. Yeah, please. I then passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go alone. Go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Very good, Krishna. Very good. Thank you. Very good. Hare Krishna. Hare Krishna. Mithil Prabhu, you can read purport if you want. It is duty of mendicant to experience all varieties of God's creation by traveling along through all forests, hills, towns, villages, etc., to gain faith in God and strength of mind, as well as to enlighten the inhabitants with the message of God. A sannyasi is duty bound to take all this risk without fear, and the most typical sannyasi of the present age is Lord Chaitanya, who traveled in the same manner through the central Indian jungles, enlightening even the tigers, bears,
snakes, deer, elephants, and many other jungle animals. In the age of Kali, sannyasi is forbidden for ordinary men. One who changes his dresses to make propaganda is a different man from the original ideal sannyasis. One should, however, take the vow to stop social intercourse completely and devote life exclusively to the service of the Lord. The change of dress is only a formality. Lord Chaitanya did not accept the name of sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasis should not change their former names following in the footsteps of Lord Chaitanya. In this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended, and one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the Parivrajacharya like Narad and Lord Chaitanya, but may sit down at some holy place and devote his whole time and energy to hear and repeatedly chant the holy scripture left by the great Acharya like the 6 Goswamis of Vrindavana. Thank you, Prabhu. Beautiful. So हम लोग जब मंदिर में होते हैं तो मंदिर में हम लोग को प्रेयर करते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तत सत अभय चरणा अरविंदो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. क्या जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य है ना. आचार्य क्या होता है? आचार्य इज समवन हु इज शोइंग अस द पाथ, who is actually walking the path, showing us the path and guiding us towards the path, है ना. उनको कहते हैं आचार्य. परिव्रजकाचार्य क्या होते हैं? He is actually doing the same thing as acharya, but he is going and taking all the risks on this planet and other planets, है ना. So वो उनको बोलते हैं परिव्रजकाचार्य. तो जैसे अब यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या है? नारद मुनि is going through many forests, rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, caves, very difficult, है ना, deep, dark, dangerously fearful forest, है ना. अब ये सारी चीजों में देखो श्रील प्रभुपाद को क्या दिख रहा है? परिव्रजकाचार्य. क्योंकि जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो ट्रैवलिंग मंक होते हैं, जिनको कहते हैं मेंडिकेंट, है ना. मेंडिकेंट इज ट्रैवलिंग मंक. जो ट्रैवलिंग मंक होते हैं वो क्यों जाते हैं? They can easily sit at one place and easily meditate on the Lord, क्योंकि वो तो एकदम वैसे ही परमहंस हैं वो, है ना. वो परिव्रजकाचार्य क्या करता है? He goes through the deep, dark, dangerously fearful forest of this material covering, और वो घर घर जाके लोगों को फ्री करवा रहे हैं, है ना. तो that's why परिव्रजकाचार्य घर घर इसलिए जाते थे ताकि they can get people out of this cycle of birth and death. और इसको deep, dark, dangerous इसलिए बोला गया है क्योंकि जो परिव्रजकाचार्य है, अगर वो परमहंस नहीं होगा तो उसके भी गिरने के चांसेस हैं. हमने देखा होगा इंडिया में काफी सारे सन्यासी ऐसे घूमते रहते हैं. हम लोगों को कभी भी जज नहीं करना चाहिए बाय द वे उन लोगों को, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कितना बड़ा भगवान का भक्त है. लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उसमें आते हैं, भगवा क्लोथ्स में आते हैं, और बाद में आपने कुछ दिया उससे वो बीड़ी खरीद के वहां पर कोने में बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं, है ना. वो लोग परिव्रजकाचार्य नहीं है, क्योंकि वो लोग परमहंस नहीं है ना. क्योंकि वो परमहंस नहीं है, जब वो डीप, डार्क, डेंजरसली फियरफुल फॉरेस्ट में घुसते हैं, जैसे कि लोगों की इंटरनल लाइफ्स में घुसते हैं, तो उनके भी गिरने का डर हो जाता है ना. एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला कि श्रील प्रभुपाद हम लोग ब्रोथल जा रहे हैं ना, ब्रोथल में हम लोग हरिनाम करेंगे और वहां पर भगवत गीता देंगे. श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम नहीं जा सकते, मना कर दिया. हाँ, तो उनको बोला पहले तुम लोग अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जाना, क्योंकि ऐसा नहीं हो तुम वहीं पर रह जाओ. फिर एक बार क्या हुआ, दूसरी बार किसी और ने भी यही चीज बोली, तो प्रभुपाद ने बोला हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, डरो मत, है ना. तो फिर किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें क्यों बोली? तो उन्होंने बोला जो पहली बार जिसने मुझे पूछा था वो लोग तैयार नहीं थे. अगर वो जाते वो डीप, डार्क और डेंजरसली फियरफुल फॉरेस्ट जहां पर ऐसे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो वहां पर वो लोग भी वहीं पर रुक जाते, है ना. तो कबड्डी वाला गेम है ना, कबड्डी में आपको उतने अंदर पाले में जाना चाहिए जितने में आप वापस आ सको, है ना, नहीं तो दबोच ले जाओगे माया के कारण, है ना. सो
इसलिए परिव्रजकाचार्य को क्या बोला गया है, ही इज डीलिंग विद ऑल दिस फियरफुल थिंग, क्योंकि माया तो बहुत खतरनाक है ना। तो इसीलिए परिव्रजकाचार्य क्या है, ही इज टेकिंग ऑल दिस रिस्क। किस लिए रिस्क? उनको खुद को तो ही दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड। शिला प्रभुपाद 69 की एज में ही वाज ऑलरेडी लाइक आराम से वृंदावन में रह रहे थे। एवरीबडी यूज्ड टू नो हिम, सब लोग उनको अच्छे से जानते थे। ये लोग उनको पता था बहुत बड़े स्वामी हैं ये, है ना। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। वो अपना श्रीमद् भागवतम लिख रहे थे, है ना। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। फिर उन्होंने क्यों इतना रिस्क लिया? क्योंकि दिस इज हम लोगों का जो गौड़िया माधवा संप्रदाय है, वो कहाँ किससे पटा पड़ा है? परिव्रजकाचार्य से। परिव्रजकाचार्य क्या होता है? दे डोंट, उनको अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन और खुद की सिक्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड एंड दे गो टू डीप डार्क एंड डेंजरसली fearful forest to save us, people like us. Srila Prabhupada went to New York and stayed in the Bowery, है ना। कितने डेंजरस जगह थी। टू डू व्हाट? टू सेव अस। क्योंकि अगर वो वहां नहीं जाते तो हम लोग भी आज यहाँ पर बैठ के ना ये नहीं भागवतम नहीं पढ़ रहे होते, है ना। So it's all glories to Srila Prabhupada, है ना। अब सन्यासी क्या होता है? सन्यासी is a duty bound to take this risk without fear, है ना। और who is the most amazing सन्यासी? लॉर्ड चैतन्य, है ना। उन्होंने तो पूरे इंडिया में, है ना, साउथ इंडिया तक वो पूरा उन्होंने ट्रेवल करा, है ना। और वो हर जगह, वो उस समय तो सब लोग पैदल ही चलते थे। और उस समय क्या था कि जो सन्यासी होते थे ना, उनको एक चीज थी कि वो लोग ना कोई भी गाड़ी पे नहीं चल सकते थे, उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो सन्यासी ड्यूटी बाउंड होते थे पैदल चलने के लिए। उनके लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी कुछ नहीं, अपने आप पैदल ही चलना पड़ता था उन्हें। तो उन्होंने सारा ट्रेवल करा। और उन झारखंड, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले झारखंड के बारे में पढ़ा था, झारखंड फॉरेस्ट में जैसे उन्होंने जब बोलना शुरू करा महामंत्र, सारे के सारे जो शेर थे, भालू थे, स्नेक्स थे, सारे डांस करने लग गए ना। कोई किसी को मारने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो क्या हमने क्या पढ़ा था? वेयर डिड इट गो? अतः पुंभे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुस्तस्य धर्मस्य समसिद्धिर्हरितोषणम। क्योंकि चैंटिंग से क्या होगा? इनकी चैतन्य महाप्रभु की चैंटिंग से क्या हुआ? समसिद्धि हरितोषणम। एक बार हरि जो है, तोषणम मैंने बताया ना, पोषण का मतलब होता है नरिशमेंट, तोषण का मतलब होता है प्लीजिंग। एक बार हम लोग भगवान को प्लीज कर दें तो एवरीवन, है ना, हरितुष्टम जगत तुष्टम, है ना। एक बार भगवान तुष्ट हो जाए तो हर कोई तुष्ट हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग करने हरि नाम शुरू करा उन्होंने जंगल में, तो जो भूखा शेर था उसकी भूख मिट गई, क्योंकि भगवान संतुष्ट थे तो उसकी भी, वो भी संतुष्ट हो गया कंप्लीटली, है ना। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि in this age, the devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended, and one who takes the vow of renunciation of family life need not to imitate परिव्रजकाचार्य like नारद और लॉर्ड चैतन्य, है ना। और लेकिन ये नहीं है कि जो लोग परिव्रजकाचार्य नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, है ना। वो अपनी जगह ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं है परिव्रजकाचार्य होना, ठीक है। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी प्रचार करेंगे। प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, लोगों को इम्प्रेस करना भी बहुत अच्छी बात है, लोगों को हमारी भक्ति के प्रति आकर्षित करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर, खुद के अंदर इस प्रोसेस के प्रति पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये प्रोसेस वर्क करता है ना। वरना क्या होगा कि हम किसी को बचाने के चक्कर में जाएंगे, हमें खुद को तैरना नहीं आता, हम उनके साथ हम भी डूब जाएंगे, है ना। बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिव्रजकाचार्य बनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले परिव्रजकाचार्य बनने से पहले हमारे पास वो क्वालिफिकेशन तो हो, है ना। लोगों को बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कई लोग होते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में, दे वांट टू सेव द होल वाइड वर्ल्ड, आई वांट टू सेव एवरीवन, you know, you can't save everyone. First we have to save ourselves. और उसके बाद जैसे जैसे हमारी भक्ति स्ट्रांग होती जाएगी, जब हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तब जाके हम लोगों को दूसरों के पालों में उतरना चाहिए कि हाँ मैं जाके इसको सेव करूंगा।
है ना। तो हम लोग किसी को सेव करने जाते हैं, खुद ही फंस जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि we should sit down at some holy place and devote their life and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures left by the great acharyas like 6 Goswamis of Vrindavan. तो 6 Goswamis of वृंदावन इन्होंने जो काफी सारे लिटरेचर लिखे हैं वो हमें पढ़ना, उनको सुनना चाहिए। जो लोग परिव्रजकाचार्य नहीं बन पाते उनको ये करना चाहिए, है ना। तो हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो इस बार हमें क्या करना है, और अभी तो बहुत ही आसान कर दिया श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 16 राउंड चैंटिंग के और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, ठीक है। अब ये 2 चीजें करने के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, ये भागवतम पढ़ते पढ़ते हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, है ना। अभद्र जो होते हैं हमारे मन के, जो अभद्र हैं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरे नष्ट नहीं होते हैं। प्रायेषु का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अब रोज भागवत पढ़ने से अगर हमारे जो अनर्थ हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो पूरे खत्म किससे होंगे, कोई बता सकता है? पूरे नहीं खत्म हो रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो पूरे किससे खत्म होंगे? चैंटिंग। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। चैंटिंग से, क्योंकि चैंटिंग क्या है, चैंटिंग इज द अल्टीमेट गोल, है ना। हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी चैंटिंग सुधरे, है ना। और हमारी सेवा जो हम कर रहे हैं उससे भी यही होता है। हर जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकतम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां, पूरे मन से एकदम कंटिन्यूसली, सतत युक्तानां भजताम, जो मुझे भजता है, कैसे भजता है, प्रीतिपूर्वकम, है ना। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि, मैं क्या देता हूं उन्हें, बुद्धि योगम तम, उनको वो बुद्धि देता हूँ, है ना। भक्ति योग भी कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे उनको बुद्धि, मेरे पास आने की बुद्धि भी मैं ही देता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन किसको देते हैं वो? तेषाम सतत युक्तानाम, जो भगवान का सतत कोशिश करते रहते हैं। तो भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि यू शुड बी सक्सेसफुल इन एंडेवर। भगवान का वो कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को अगर भगवान ऐसी कंडीशन दे देंगे तो हम लोग सब यहीं पड़े रहेंगे हमेशा के लिए। भगवान की क्या कंडीशन है कि वी शुड एंडेवर 100%। परफेक्शन आएगा, वी आर ऑल इन वर्क इन प्रोग्रेस, वी ऑल आर। जिसको लगता है he or she is not work in progress, that means they definitely are work in progress, है ना। So ये हम लोगों को बहुत समझना चाहिए। Let's see what next में क्या होता है। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनाद्या उपास्पृष्टो गता स्मरः। कह रहे हैं thus traveling I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry, so I took a bath in river, lake, and also drank water. By contacting water I got relief from my exhaustion. Let's see what Srila Prabhupada says in purport. कौन पढ़ेगा? प्रभु मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। Please. A traveling mendicant can meet the need of the body, namely thirst and hunger, by the gift of nature, without being a beggar at the door of householders. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg, but to enlighten him spiritually. Beautiful. देखो कितना बढ़िया ना। Beautiful. Thank you for that, Nehmata ji. Such a beautiful purport. A traveling mendicant, उनको traveling mendicant को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या लगता है, जैसे मेरी मम्मी हमें एक बार क्या हुआ,
हमारे घर में कोई आया था मांगने के लिए, सन्यासी थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये मांगने के लिए आए हैं, उनको बहुत भूख लग रही है ना, हम लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ऐसी बात बोली जो मेरे को उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बट मैंने ज्यादा बहस भी नहीं करी, लाइक व्हाटएवर। मम्मी ने बोला ये हम लोगों से मांगने के लिए नहीं आए हैं, ये हमें देने के लिए आए हैं, है ना। और ये हमें देने के लिए आए हैं, इसीलिए हम इनको दे रहे हैं, है ना। ये हमें एक्चुअली हमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हमें देने के लिए आए हैं। और उनको हमें कुछ देने का कुछ बहाना चाहिए, इसीलिए वो हमसे मांगते हैं, है ना। तो उसमें भी बताया था, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मेंडिकेंट जो परिव्राजकाचार्य हैं, ये लोग हर घर में कितनी देर के लिए रुकते थे, जितनी देर एक गाय को दूहने में लगता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा, मुझे लगा कि वो इसलिए इतनी देर रुकते हैं क्योंकि जितनी देर में गाय का दूध निकलेगा तो वो दूध के लिए रुके हुए हैं। नहीं, ये एक कहावत है, उनको टाइम दिया है कि भाई इतने टाइम के लिए रुकते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो दूध का वेट कर रहे हैं कि दूध निकाल दो मेरे को दे दो, नहीं, वो इसलिए इतनी देर रुकते हैं क्योंकि वो उतनी देर में वो उनको क्या दे रहे होते हैं, भक्ति प्रदान कर रहे होते हैं, है ना, भक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। और इससे ज्यादा इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट। क्योंकि हाउस होल्डर्स जो हैं, वो हाउस होल्डर्स क्या है, हाउस होल्डर्स के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाउस होल्डर्स के अपने वो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐशो आराम भी है ना। इमेजिन मेंडिकेंट सामने कोई सन्यासी खड़ा है, उसने देखा कि बहुत अंदर से उन्होंने जब खाना लाया तो बढ़िया बढ़िया पकवान है, एकदम थाली सजी हुई है ना, इसमें पानी पूरी भी है, भेलपूरी भी है, फाफड़ा भी है, ये है वो है। उनको लगेगा यार देखो इसके हस्बैंड के कितने मजे हैं, है ना, कि इसको ऐसा ऐसा खाना मिल रहा है रोज बना बना के, है ना। इसका मतलब मेंडिकेंट के दिमाग में क्या आ सकता है, आई शुड गेट मैरिड, है ना। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, एक बार क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारी था, उसकी कोपिन को एक चूहे ने काट लिया, है ना। उसके पास एक ही कोपिन थी, तो क्या करता था, दो कोपिन थी, एक को सुखाता था और एक पहनता था, है ना। तो तो एक उसको कोपिन को उसने चूहे ने काट कुतर दिया, तो उसने दूसरी कोपिन बनानी पड़ी, फिर उसको भी थोड़ा कुतर दिया। तो उसने बोला कुछ करना पड़ेगा, कोपिन मतलब क्या करूं। तो किसी ने उसको सजेस्ट करा, एक काम करो, बिल्ली से डरते हैं, एक बिल्ली ले आओ। तो बिल्ली ला के रखी, तो फिर आया नहीं चूहा, कोपिन बच गई, लेकिन वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो उसने बोला अब क्या करूं। तो किसी ने बोला कि बिल्ली को दूध पिलाओ। तो एक बार मांग के लाया, दूसरी बार मांग के लाया, बोले अब क्या करूं। बोले यार ये तो रोज बहुत दूध पीती है। तो किसी ने बोला एक काम करो, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, मांग लो किसी से, कोई दान दे देगा तुम्हें गाय। तो गाय ले आए वो दान दान में, और गाय ले आए, गाय से वो बिल्ली को दूध पिलाता था रोज। लेकिन वो गाय दूहने में, उसको गोबर साफ करने में, फिर उसको नहलाने में धुलाने में बहुत टाइम जाता था, उसका पठन पाठन यजन याजन सब बंद हो गया। फिर उसने सोचा अब क्या करूं। फिर उसने क्या करा कि फिर किसी ने उसको सजेस्ट करा कि एक काम करो, तुम शादी कर लो ना। तुम्हारी गाय की देखभाल वो करेगी, तुम्हें खाना भी खिलाएगी, और फिर तुम अपना पठन पाठन कर सकते हो, सारा काम वो कर लेगी। ठीक है, उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो फिर उसकी वाइफ ने बोला ऐसे कि झोपड़ी में थोड़े रहूंगी मैं, मेरे को बड़ा घर चाहिए भाई। तो फिर उसने बोला अब क्या करूं। तो किसी ने बोला अब नौकरी कर लो। तो उसने अब नौकरी कर ली। फिर काफी सालों के बाद फिर बच्चे हो गए। फिर काफी सालों के बाद उनके जो गुरु महाराज थे वो आए। उन्होंने बोला अरे भाई साहब, यहाँ पर ना मेरा एक डिसाइपल रहता था, है ना, वो पता नहीं यहीं पर रहता था, झोपड़ी थी उसकी, पता नहीं कहाँ गया। तो जैसे ही गुरु को देखा, उसको सब याद आ गया, उसने पैर में गिर गया, बोले गुरु महाराज वो मैं ही हूँ। बोले अच्छा, तुम तो ब्रह्मचारी थे, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं गुरु महाराज, मेरी कोपिन को चूहा काट रहा था। आप सोचो, कोपिन को चूहा काट रहा था, उसके चक्कर में उसने अपने उसका एम क्या था, एम था कि वो पठन पाठन यजन याजन करे ताकि वो भगवत धाम जा सके जल्दी। लेकिन वो भूल गया और वो किस में लग गया, अपनी कोपिन बचाने में लग गया। कोपिन को बचाने के चक्कर में उसने सारा वो अपने आप को पूरा इस भवबंधन में बांध लिया। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार एक प्रॉपर्टी है, एक और ले लेता हूँ, है ना, उससे क्या होगा, मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन उस सिक्योरिटी के चक्कर में हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, स्व अनुष्ठित
स्वनुष्ठस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठस्य धर्मस्य क्या बोला है? समसिद्धि हरितोषणम। हम लोग भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली एम हर चीज का क्या है? हरितोषण। हमारा तोषण नहीं, हरि का तोषण। तो वो भूल गया और उसने हरि के तोषण की जगह अपना तोषण में लग गया, और दैट्स व्हाई ही हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। हम लोग भी क्या सोच रहे हैं, हर बार हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, खाने के लिए सब कुछ है, सोने के लिए अच्छा वो है, गर्म कपड़े हैं, है ना, घर में कोई बहुत मेजर इशू नहीं है ना, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन हम लोगों को फिर भी उसमें क्या कमी नजर आती है। फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक और चीज ले लेते हैं, एक और गाड़ी ले लेते हैं, एक और ये कर लेते हैं, एक और नौकरी कर लेता हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली इन सारी चीजों का मकसद क्या है? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। सम सिद्धिम हरितोषणम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स, है ना। भगवान खुद ही कहते हैं कि क्या था उसमें, भगवत गीता का एक श्लोक था ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि आई फॉरगॉट दैट वर्ड्स, जिसमें रूट्स वाला है ना, रूट को पानी डालो तो सब, भगवान को संतुष्ट करो, सब लोग संतुष्ट, सब चीज संतुष्ट हो जाएगी। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम सारी चीजें संतुष्ट कर लेंगे, उसके बाद भगवान को संतुष्ट करेंगे, है ना। एक बार बोल प्रभु, एक बार ना बस मेरे नौकरी सॉर्ट हो जाए, फिर मैं चैंटिंग करूंगा। आप देखते जाओ प्रभु, मजा आ जाएगा। फिर बोलता है वो चीज छोड़ो, अरे प्रभु बस एक बार बस ना, बहुत स्ट्रेस में हूँ, एक प्रोजेक्ट निकल जाए, बस ये एक प्रोजेक्ट निकल जाए, उसके बाद देखो क्या चैंटिंग करता हूँ, हो गया। अरे प्रभु आप देखो अभी क्या है, एक प्रमोशन अटका पड़ा है, एक प्रमोशन हो जाए, फिर देखो मैं क्या झंडे गाड़ दूंगा भक्ति में, आप देखते रह जाओगे प्रभु। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आता जाता है। क्यों आता जाता है? भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे को जितना मेरे पे सरेंडर करता है, मैं उतना ही उनके उसमें आता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, है ना। उतना ही उनको, जितना वो मेरे पे स्टेप लेंगे उतना ही मैं लूंगा। लेकिन हम लोग किस तरफ स्टेप ले रहे हैं? हम लोग भगवान के अगेंस्ट स्टेप ले रहे हैं, हम लोग भगवान को लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप लोग बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर हम लोग सुबह उठते ही, है ना, अगर हम लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं चैंटिंग के लिए, इसका मतलब हमारे लिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मेरे को एक प्रभु जी ने दिया था। बोले प्रभु, ब्रिजेश प्रभु, अगर आपको सुबह इंडिया जाना है ना, सुबह की आपकी फ्लाइट है 6 बजे की ना, तो आप 2 बजे उठोगे कि नहीं उठोगे? बिल्कुल, तो 1 बजे उठूंगा मैं तो। क्यों उठोगे? क्योंकि फ्लाइट मिस हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। बोले वो नुकसान कितने का होगा तुम्हारा? $2000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, सपोज 2000 की टिकट है, $2000 का नुकसान हो जाएगा। बोले आपको पता है कि आपका जो ये चैंटिंग है, ये अरबों खरबों खरबों जन्मों से भी ज्यादा कीमती है। आपका जो चैंटिंग में से जो आपको मिल रहा है, उसके लिए देवतास कैन फाइट, कि आपको जो मिल रहा है उससे, उसके लिए। लेकिन हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग 2000 बचाने के चक्कर में जल्दी उठ रहे हैं। इसका, अगर हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे पास हम लोग उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने क्या बताया, हाँ, तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको सुबह उठना है, जरूर, मतलब देखो एक्सेप्शन सब जगह होंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे हेल्थ को हमें देखना है, हमारे घर को भी हमें देखना है। बस मैं ये बता रहा हूँ, इट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट्स प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अगर हमें कोई चीज की बहुत जबरदस्त सीरियसनेस है ना, तो मेरे को हर कोई बोलता है कि अभी मैं एक जोक पढ़ रहा था, उसमें बोला कि एक आदमी बोलता है, अरे तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैं लैंप के नीचे बैठ के पढ़ता था। तो कि दूसरे ने बोला, अरे जब मैं छोटा था तो मैं तो लैंप भी नहीं थी मेरे पास, मतलब स्ट्रीट लैंप तो थी, स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ता था। तो उसने बोला, अरे स्ट्रीट लैंप भी नहीं थी मेरे पास, मैं तो दिया जलाता था और केरोसिन का उससे पढ़ता था। तो तीसरा आके बोलता है, अरे तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी लाइट की, तो दिन में पढ़ लेते, रात का क्यों इंतजार कर रहे थे पढ़ने का? दिन में पढ़ लेना चाहिए था, है ना। तो एक्चुअली क्या है, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स प्रायोरिटी मैनेजमेंट। एक्चुअली हम लोगों को, अगर हम लोग सुबह चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, इसका मतलब यह है कि चैंटिंग इज नॉट आवर प्रायोरिटी। अगर हम लोग योगा नहीं कर पा रहे हैं सुबह, इसका मतलब योगा इज नॉट आवर प्रायोरिटी। और जो भी हमारी प्रायोरिटी में होगा, हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेंगे। अगर बच्चा रात को रो रहा होता है, हम लोग उठ के उसको संभालते हैं और सुबह ऑफिस भी चले जाते हैं, ठीक है ना।
क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ऑफिस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए चैंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चैंटिंग इज ए वेरी पर्सनल बिजनेस, है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो हम लोगों को क्या लगता है, nobody is watching it, nobody is looking at it, nobody is monitoring it, but you know who is monitoring it? Krishna is monitoring it. Krishna is sitting over there with his tears in his eyes. भगवान कृष्ण आंखों में आंसू लिए, जो जिसको कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति, जो अपने आप में पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, वो मेरे और आपके पर्सनली, लाइक फॉर एग्जांपल नेहा माता जी, रुचिता माता जी, आप सिर्फ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि इट बिकम्स पर्सनल। ही इज क्राइंग सेइंग दैट ये रुचिता कब आएगी मेरे पास, व्हेन वुड आई बी एबल टू सी हर फेस टू फेस एंड यू नो and hug her, you know, when would I be able to have this association of this person, when would I see this you know person Neha, when would I see them? That's how he's crying over there. लेकिन हम लोगों को नहीं पता चल रहा है, हमें क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारा इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस माया की प्रति कि वी कैन नॉट, है ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, वी हैव टू कीप रियलाइजिंग दिस कि भगवान वांट्स अस बैक, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। आई एम नॉट आस्किंग यू टू यू नो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी फैमिली डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन ऑलवेज ट्राई एंड प्रे टू द लॉर्ड, भगवान मेक चैंटिंग माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप नहीं उठ पा रहे हो सुबह या नहीं हो रही है चैंटिंग, जस्ट टेल कृष्णा, कृष्णा मेक इट माय फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लीज हेल्प मी। और नहीं हो रहा है तो यू आस्क मी, आई विल प्रे, वी ऑल विल प्रे फॉर यू। आस्क योर, जो आपके बहुत क्लोज हैं उनसे बोलो कि प्लीज मेरे लिए प्रे करो, है ना। and it will happen, and it has happened in the past hundreds of time। मैंने देखा है कि just by praying people, लोगों की काफी सारी चीजें सॉल्व हो गई, especially when we are asking them for spiritual enlightenment। Bhakti can only come from bhakti, and this is, I think we will after this point we will stop, but let me stop sharing। हाँ, भक्ति कैन ओनली गिव यू भक्ति, नथिंग एल्स। कई बार लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ पुण्य करेंगे उससे हमें भक्ति मिलेगी, है ना। भक्ति, अच्छा ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट भक्ति? कोई बता सकता है हाउ डू वी गेट भक्ति? भक्ति कहाँ से मिलती है अपन को, कहाँ से आती है भक्ति? कोई डिवोटी से, हाँ, कोई डिवोटी बाय हार्ट कोई प्रे करे तब वो भक्ति होती है। बिल्कुल सही, हार्ट टू हार्ट। There is no other way. Bhakti cannot be gained. अगर आप किसी वैष्णव की सेवा भी करते हो तो उससे भी भक्ति नहीं मिलती, आपको पता है। भक्ति सिर्फ वैष्णव जब प्रे करता है कि ना भगवान इसको भक्ति दे दो, उसके हृदय में से भक्ति का सार निकल के आता है, फिर उसके हृदय में जाता है, then you get भक्ति। There is no other way। कहते हैं कि अगर आपने किसी वैष्णव की सेवा करी उससे आपको सुकृति मिलेगी, इसको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति, है ना। सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति में और भक्ति में अंतर है। भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या होती है कि आपने क्या करा है कि आपने किसी वैष्णव को ना वो कर दिया, प्लीज कर दिया, किसी वैष्णव की डिवोटी की अपनी सेवा करी, उनको खुशी हो गई, इसको कहते हैं भक्ति। फिर आपको एक क्रेडिट मिलता है, डिवोशनल क्रेडिट, इसको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। लेकिन वो भक्ति नहीं है ना। लेकिन उस भक्ति उन्मुखी सुकृति के कारण आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जब यू कैन एक्चुअली तो क्या होगा, उस भक्ति उन्मुखी सुकृति के कारण कोई ना कोई डिवोटी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान इसको भी भक्ति दे दो, है ना। और दैट्स हाउ भक्ति कैन बी। हमें क्या लगता है कि कई लोगों को लगता है, मैं बहुत सारे नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं इंडिया में, उनको क्या लगता है भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति आती है ज्ञान से। उनको लगता है कि भक्ति कैसे आएगी, मैंने खूब सारी बुक पढ़ ली, मैंने खूब बार भगवत गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, हजारों लेक्चर सुन लिए, कुछ आप यू कैन बिकम ज्ञानी बट यू कैन नेवर बिकम भक्ता। भक्ति कैन ओनली कम फ्रॉम भक्ति। भक्ति उसके अलावा कोई चांस नहीं है भक्ति को मिलने का, है ना। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जब बता रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग मंक होता है उसको क्या, वो सिर्फ भक्ति देने के लिए लोगों के पास जाता है,
वो भक्ति उन्मुखी सुकृति इंक्रीज करने के लिए जाता है, उसको और कोई मतलब नहीं है। नारद मुनि जब ट्रैवल करते हैं पूरे उसमें ब्रह्मांड में, मेरे जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि नारद मुनि इज वन ऑफ द मोस्ट गॉसिपर, बिगेस्ट गॉसिपर, और कोई काम नहीं है, इधर की लड़ाई उधर, इधर से इधर की बात उधर करना, लड़ाई करवाना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, आई मीन आई हैव सो मच ऑ एंड रेवरेंस फॉर नारद मुनि का, सच एन अमेजिंग प्रीचर। वो जैसा बंदा होता है उससे वैसी बात करते हैं, है ना। और किसी को मरवाना होता है उसको मरवा भी देते हैं। कंस को बोल दिया, अरे तेरे को पता ही नहीं है यार, तेरे को पता ही नहीं है, वहां तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है। क्योंकि वो उनको लग रहा था कि जब भगवान जब अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसको तो इसको तो मिलेंगे ही नहीं कृष्णा कभी, की लड़ाई करूं मैं कृष्णा से, कृष्णा इसको मारे। तो और ज्यादा जल्दबाजी कराने के लिए उनको बोला, अरे तुम क्या यार, तुम्हें पता ही नहीं है, ये देखो वो जो नंद महाराज के घर पे ना वो 2 बच्चे हैं ना, वही है, उनमें से एक कृष्णा है। बस इतना भी बता दिया जाके। क्यों बताया कि बड़े जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हारा बहुत हो गया, है ना। तो दिस इज हाउ नारद मुनि इज नॉट हेयर गॉसिप करने के लिए नहीं है। नारद मुनि के एक ही चीज से हजारों काम कर देते हैं, ऐसे भक्त हैं वो। अभी देखो प्रहलाद महाराज को किसने शिक्षा दी? नारद मुनि ने, ठीक है। व्यास देव जी को किसने शिक्षा दी? व्यास देव जी के गुरु कौन है? नारद मुनि, ठीक है। और उनको ध्रुव महाराज को किसने जंगल में शिक्षा दी? नारद मुनि ने, ठीक है। पृथु और कितने सारे लोग हैं, उनको सब लोगों को सिर्फ नारद मुनि ने ही कहीं ना कहीं भक्ति में लगाया है। इसलिए कहते हैं भक्ति कैन ओनली कम फ्रॉम भक्ति। और परिव्राजकाचार्य जो लोग होते हैं वो लोगों के घर में भीख मांगने नहीं जाते हैं, वो लोगों के घर में भक्ति देने आते हैं। शिला प्रभुपाद भीख मांगने के लिए यूएस नहीं गए थे, और शिला प्रभुपाद इसलिए नहीं गए थे, और यूएस में यार मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, चलो वहां रह के देखते हैं कितना मजा आता है, स्पा में आई वांट टू डू स्पा, है ना, सोना, उसके लिए नहीं गए थे। शिला प्रभुपाद गए थे वहां देने के लिए। सो देयर वाज अ रिपोर्टर इन लंदन, he said, Swamiji, why did you come here? So Swami, so Srila Prabhupada कहते हैं कि you've taken all the treasures from India, but one treasure, the biggest treasure you forgot, which is Bhagavad Gita. So I came to deliver it, home delivery to you, है ना। So ये important है, और यही परिव्राजकाचार्य है। शिला प्रभुपाद की लाइफ कोई आसान नहीं थी। 69 के थे, उससे पहले भी आसान नहीं थी, और 69 के बाद भी आसान नहीं थी, जबकि 69 के बाद तो और भी मुश्किल थी। लेकिन he did it for who? He did it for us. That's what the परिव्राजकाचार्य means, है ना। और किस लिए करा? क्योंकि he wanted to infuse bhakti, and because of this person, Srila Prabhupada, because of Srila Prabhupada, we all are sitting here, है ना। और अगर हमारे पास इतनी सभी क्वालिफिकेशन है ना कि वी कैन गो बैक होम टू बैक टू कॉटेज, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है शिला प्रभुपाद के ऊपर। और क्वालिफिकेशन अभी भी नहीं है, लेकिन वो जो हमें थोड़ा सा एक होप है, थोड़ा सा रीजन है कि यार हम लोग somehow is connected to him, and that is not because of our qualification, that is because of his mercy, that is because he is a परिव्राजकाचार्य। इतनी ज्यादा उनमें वो है कि ही इज गिविंग अस भक्ति। अभी भी आप सोचो हम लोग कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? बिकॉज सम सिद्धि हरितोषणम। उनको पता है कि हम लोग जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, और उस सुख को प्रदान करने के लिए वो हम लोग जिस डिच में पड़े हुए हैं ना, कीचड़ में पड़े हुए हैं, वो उस कीचड़ में कूद के हमें निकाल रहे हैं, है ना। और ये परिव्राजकाचार्य ही कर सकते हैं, है ना। हमारा क्या धर्म है? अभी हमारा ये धर्म है कि हम लोग क्या था फर्स्ट वाला? सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, है ना। The supreme occupation of all humanity is that by which men can attain the loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. We are all looking for satisfaction, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षजे। भक्ति के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है हम लोगों को आगे जाने का, ठीक है। फिर स्टॉप है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? Prabhuji, is the morning group chanting happening anymore? मित्र प्रभु आप आ रहे हो? नहीं प्रभु जी, मेरा अभी क्या है कि
मैं मेरी बेटी के साथ सोता हूँ ना, तो हाँ मैं कर सकता हूँ प्रभु जी, मैं आऊंगा प्रभु जी, कल से आऊंगा। एक्चुअली मुझे लगता है ना मॉर्निंग ग्रुप चैंटिंग से बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो ठीक तो है, मैं एक नो काम लाइक, कर, मैंने क्या करा था, मैं इसलिए नहीं लॉग इन कर पा रहा था क्योंकि मेरा ना स्टडी चेंज हो गया है, बेडरूम में स्टडी आ गया है ना। तो नाउ व्हाट आई विल डू, क्योंकि मेरा सारा सेटअप यहीं पर है ना, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल लॉग इन फ्रॉम माय मोबाइल फोन, ठीक है, बट वी विल डू इट, बट वी विल डू इट, ठीक है। मिथिल प्रभु, आपके पास लैपटॉप होता है, सुबह होएगा आपके पास हाँ लैपटॉप? हाँ हाँ मैं लैपटॉप, आपको लिंक भेजता हूँ, आप ना शेर प्रभुपाद का वो चला देना बस, है ना, हाँ वो मेरे पास है प्रभु जी, मेरे पास है ना। पड़ा है। हाँ, तो आप उसको स्क्रीन शेयर करके उसको ऑन कर देना सुबह, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो, मेरे पास है वो वाला। सी यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक हाँ है, प्रभु, श्योर। चलो। और कुछ, एनीवन एल्स हैज एनीथिंग दे वांट टू आस्क, रेज और शेयर? प्रभु जी मैं मेरी बेटी का बताता हूँ। हाँ प्लीज। वो देखो, एक चीज है कि मेरी भक्ति और उसकी भक्ति का डिफरेंस मैं बताता हूँ। उसको 2 दिन पहले वो ऐसे ही कहीं पे बाहर खेल रही थी तो उसको लग गया। हाँ वो घर पे रोती रोती आई तो मैं बोलता हूँ कि कृष्णा को बोल कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ। हाँ। तो वो बोलती है कि उसने नहीं किया है, ओ माय गॉड, he didn't hurt me। ओ माय गुडनेस। और हम बोलते हैं कि हम लोग उन्हीं पे नाम लगा देते हैं। क्या किया भगवान, क्या। आज सुबह उसने दूसरा हुआ मेरे साथ, उसके हाँ, मैं भगवान को वाओ, नहलाने बैठा ना, हाँ तो वो अपने हाथ में लेके बैठी है। उसको बहुत पसंद है वो उस हाँ कृष्ण के साथ खेलना। हाँ वो बैठी है तो फिर वैसे ऐसे कर रही थी तो गलती से भगवान का हाथ उसके दांत पे लग गया। हाँ। ये दांत पे लगा तो वो बोलती है सॉरी कृष्णा। ओ मैं माय क्या होगा, गॉड। हम होते तो ऐसा होता है यार भगवान क्या करते देखते। सॉरी कृष्णा। ओ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाँ, यू तो नो। मुझे लगता है कि ये देखो, मैं उसको जब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो फेक ही चल रहा है सारा कुछ। हाँ प्रभु, हम लोगों का क्या कंडीशनिंग बहुत ज्यादा होगी ना प्रभु, हमारा लेयर्स, हमारी धूल मिट्टी जो हमारे ऊपर चढ़ गई है ना, वो बहुत थिक हो गई है। अभी छोटे बच्चे हैं ना, इनमें अभी वो चढ़ी नहीं है इतनी धूल मिट्टी, इसीलिए दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर देन अस, है ना। क्योंकि ये हमारा जो भक्ति है ना प्रभु, भक्ति इज वेरी पर्सनल, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इतना इम्पर्सनल बना देते हैं जिसकी हद नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार भगवान को सब पता है। अरे भगवान को सब पता है, वो तो सबको पता है, लेकिन यू टेल हिम तो तभी तो पर्सनलाइज। भक्ति का मतलब होता है एकदम पर्सनलाइज होना, मतलब भगवान को एज ए पर्सन समझना। जैसे यू गो टू एंड यू टॉक टू हिम। जैसे आज मैं मंदिर गया तो मैंने अब मेडिटेशन करके गया था मैं, कि मैं आज ना भगवान को जाके आई विल आस्क हिम, आई विल हैव ए चैट विद हिम। तो मैं उनसे बात कर रहा था ऐसे खड़े खड़े, मैंने कहा भगवान बड़े आज बड़े अच्छे लग रहे हो, है ना, बड़ा मस्त मस्त कपड़े बड़े पहने हैं, कहीं जा रहे हो क्या, ऐसे मतलब आई वाज ट्राइंग टू मक अराउंड। एंड देन मोर एंड मोर आई, मैंने उनसे बात करी, मोर एंड मोर आई फेल्ट कि आहा मजा आ गया उनसे बात करके। कि मैं उनसे ऐसे ही बोल रहा था कि आप लोग कितनी कितनी कोशिश कर रहे हो ना हमें अपने पास बुलाने की, लेकिन हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आप मत, मुझे पता है आप हिम्मत नहीं हारोगे, क्योंकि हम लोगों का तो भरोसा नहीं है, लेकिन आप पे पूरा भरोसा है। क्योंकि आप कौन हो, इनफेलेबल, है ना। अच्युत, भगवान को कहा जाता है अच्युत, अच्युतानंद, है ना। उनको इसलिए बोला जाता है अच्युत क्योंकि ही इज नेवर फेलेबल, ही विल नेवर फेल, है ना। वी कैन फेल बट ही कांट फेल। मैंने कहा यू कैन नॉट फेल कृष्णा, सो आप लगे रहो, आप हमें जो सिखा रहे हो लगे रहो। एंड आई फेल्ट कि भक्ति इज वेरी वेरी पर्सनल। अगर हम डीटी से बात नहीं करेंगे, उनको अगर हम लोग पर्सनल अटेंशन नहीं देंगे ना, तो लिटरली कोई मतलब नहीं है। मतलब भक्त हमारा जो बाकी सारे, जैसे ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग इज नॉट पर्सनल। उन्होंने बोला यार क्या है, नथिंग इज, सब चीज भगवान है और कुछ भी भगवान नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, फोटो पे है तो कोई बात नहीं, डीटीज हैं, खाया खाया नहीं खाया, डीटीज को खाना नहीं खिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास तो बहुत सारी रानी, वो हैं, लक्ष्मियां हैं, उनको खाना खिलाने के लिए, मैंने नहीं खिलाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दैट्स नॉट पर्सनल, दैट्स ज्ञान। ज्ञान पर्सनल क्या होता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा तो यार ये भूखे बैठे हैं, और बिल्कुल भूखे बैठे हैं, मतलब लिटरली उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, दे ही इज थिंकिंग सिटिंग देयर, ओ माय गुडनेस, यार कब लड्डू गोपाल बैठे हैं यार, प्लीज यार ये क्या है यार, इसको आज नींद ही नहीं खुल रही है, मैं भूखा हूँ।
If you think like that, I'm telling you, your bhakti will go, exponential growth. If you think like that about Krishna, Laddu Gopal is your child, he is completely dependent on you. खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, everything. अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हो घर पे, तो they cannot think about your child, then they cannot move. If you have that kind of a, भगवान के लिए, then trust me, you will see the exponential growth in your bhakti. Exponential. Because bhakti is personal. You have to personally take care of Krishna. हम लोगों को ये सोचना चाहिए he is dependent on us. He's actually not. But when we think he's dependent on us, then we can be more personal. क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है, हम लोग ऐसे ही पर्सनल बन सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि हमें लगे कि यार सब, आप सोचो हम बच्चों के साथ इसलिए पर्सनल है इतने, क्योंकि हमें पता है पर्सनल पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना। अब जो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता, हम उनसे कितना बात करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो इफ यू वांट टू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, जैसे आपकी बेटी ने सॉरी कृष्णा बोला, उसको खुद के लगी, लेकिन वो सॉरी उसको बोल रही है, एंड दिस इज हाउ, एंड दैट लव इज कृष्णा विल रेसिप्रोकेट फॉर हर डेफिनेटली। हमारे पास है ही नहीं वो, क्योंकि हमारे पास इतनी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, लेकिन हमारे पास एक होप है प्रभु, है ना। होप क्या है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी होप है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, द डे वी स्टॉप listening or talking to each other, having this association, there is no way, माया का बहाव इतना strong है ना कि nobody can save us, nobody can save me as well. अगर आप लोगों का साथ नहीं हो, I can't do this kind of service if you don't engage me. एक दिन करते थे, 2 दिन करवा दिया, it is amazing, and I'm very grateful. And we will, अगर एक चीज हम लोगों ने और बोली थी, अब डिस्कसिंग कि if you want to go fast, you go alone, but if you want to go far, you go with people, है ना। and ये this is a African proverb, है ना। और वो हमारी भक्ति के लिए भी है। अगर हमें भक्ति में बहुत आगे जाना है ना, बहुत आगे जाना है, तो हम लोगों को साथ चाहिए, हम अकेले नहीं जा सकते, है ना। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन हम लोग अकेले निकल गए ना, बहुत जल्दी थक जाएंगे, है ना। फास्ट होंगे लेकिन बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाएंगे। और हम लोग साथ में होंगे तो वी विल गो ऑल टुगेदर। इमेजिन वी आर सर्विंग कृष्णा टुगेदर, even as a bhakti vriksha. Like, why can't we serve Krishna together as a bhakti vriksha? All of us have our own, things to take care, and we are staying there together. We are having a lot of fun just serving the Lord. We can do it. लेकिन अकेले लोगों को क्या, अगर हमें लगता है कि नहीं यार अकेले चले जाएंगे, somebody is बहुत धीरे है यार, उसको नहीं ले जा सकते, या ये बहुत तेज है, इसके साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसे नहीं करना। We should go together, है ना। Engage each other, be a very personal, have a very personal relationship with your Laddu Gopal. He reciprocates, he will reciprocate. And share your realization with others. Don't hesitate, don't hold back, है ना। एक और था कि वो रात को मेरे साथ सोती है, और मेरा बेटा उसकी मम्मी के साथ, हम क्योंकि एक बेड में 4 लोग सो ही नहीं जा सकते। हाँ। तो एक रात को वो बोलती है, मेरे पास आके सोती है, फिर बोलती है 5 मिनट के बाद, पापा मुझे मम्मी के पास जाके सोना है। मैं बोला कि हाँ जाओ, जाके सो जाओ। तो फिर वो गई, फिर वापस आई, वो पूछते पापा आपको डर तो नहीं लगेगा ना? मैंने बोला डर तो लगेगा, डर तो लगेगा। Don't be scared. Krishna is everywhere. Oh, beautiful. फिर वो बोलती है, ऊपर जो छत पे वो जो स्टार आते हैं ना, वो रात को चमकते हैं, तो एक कृष्णा तो वहां पर हैंगे, वो फनी फेस बना के आपको देख रहा है। Beautiful. देखो, this is amazing, isn't it? This is the beauty of these kids, और हम लोगों को देखो कितना सिखा रहे हैं ना। हम लोग कोई है नहीं, आप देखो, देखा जाए प्रभु, हमारा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेरे को वो निशांत प्रभु शेयर कर रहे थे कि एक बार उनकी गाड़ी की चाबी खो गई, ठीक है, गाड़ी की चाबी खो गई वहीं पर, तो ही जस्ट स्टार्टेड लुकिंग। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को आगे बताया, तो मम्मी ने बोला कि लेट्स प्रे,
बोले यार मैं इतने देर से सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया नहीं कि आई शुड आस्क कृष्णा टू हेल्प मी। देन उनकी मम्मी ने प्रे करा, थोड़ी देर में चाबी मिल गई, यू नो। सो आई मीन इट्स नॉट अबाउट कि भले ही कोइंसिडेंस से मिली हो, लेकिन इस पूरी चीज में हमें क्या समझ में आता है कि हम जब ट्रबल में होते हैं कि हम वी आर नॉट लुकिंग फॉर कृष्णा, वी आर नॉट लुकिंग आउट, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कृष्णा पे, ज्यादा बोलने के लिए है लेकिन एक्चुअल नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ आ जाता है तो वी डोंट डिपेंड ऑन कृष्णा, वी डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स, वी डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स, वी डोंट डिपेंड ऑन कृष्णा। और ये यथामाम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है डिपेंडेंस, यू नो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिसने जितना भी सरेंडर करता है उसको मैं उतना ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। हमारे पास है नहीं इसलिए भगवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ वी कीप चैंटिंग वी विल गेट देयर, है ना, 100%। शिला प्रभुपाद ने बोला है, यू नो, ही इज कृष्णा पृष्ठाय भूतले, भगवान ने भेजा है उनको। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज टोल्ड अस कि अगर हम लोग 16 राउंड रोड करते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हैं, वी विल डेफिनेटली गो बैक होम टू गॉड, बैक टू गॉड। हमें उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट फॉलो, द प्रोसेस रियली वर्क्स ना। चलो, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।